Hi friends, welcome to my YouTube channel Success Medical Mnemonics, and I'm Dr. Anuj Mahendra. I will explain you about a case of acute myocardial infarction, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो आखिरी तक बने रहिए, मैं आपको ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट तक बने रहिए। सो जस्ट सी हाउ द पेशेंट presents to you with acute myocardial infarction. This is a patient, 48-year male patient who presented with chest pain since morning, and there was no specific radiation history. Radiation of the pain was not there. So there was there was chest pain since morning, but the patient has no history of hypertension or diabetes mellitus. Usually patient known case of any cardiac disease presents with these kind of finding. So this chest pain was not radiating. Usually the pain radiate to the left side of the arm or the back or the jaw, left side of. Then this patient has BP of 160, 101. So maybe this patient is already a known case of hypertension, but patient is not aware. And on checking vitals, the oxygen saturation was 98%. And now we did the second, immediately we got the chest ECG done, and in ECG I will explain you mainly the findings. This is ECG, and in lead 2 we see the rhythm. As you can see, this is the sinus rhythm. P is followed by QRS and T. Every P is followed by QRS and T. So when P is followed by QRS and T, it is sinus rhythm, and heart rate is 1, 2, 3, around 90 के approximate heart rate है. जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस बिटवीन दी टू QRS कॉम्प्लेक्स और आर वेव के बीच में नंबर ऑफ large boxes we count, and we divided it by 300. So 300 is divided by 3 or more than 3, so it becomes like around 90 to 100. Now as you can see, I will straightforward take you to the changes. You can see this is the baseline, and from this baseline the ST elevation is still here. You can see how much is the ST segment is elevated here also, and here also. These all leads are showing ST elevation. So this is the baseline, and ST segment should be raised from here. But in case of myocardial infarction or ST elevation ECG, the elevation of ST segment is coving like this, and it is much above the baseline. So here very clearly you can see in lead V1 there is ST elevation. Again I will tell you, this is the baseline, and ST segment is elevating from here, much above the baseline. Also here as you can see, from here to here, यहाँ से ST segment elevate होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से हो गया है, रेज होना चाहिए था. तो ये ST segment elevation है. V1, V2, also V3. ये देखिए पूरा QRS कॉम्प्लेक्स नीचे बेसलाइन को टच नहीं किया, और ये यहीं से ST elevation हो गया बीच में से ही. तो ये देखिए V1 में ST elevation है, एंड V2 में है. यहाँ पे देखिए जैसे कि QRS कॉम्प्लेक्स पूरा टच किया, उसके बाद ST सेगमेंट आया है. यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स पूरा टच किया, उसके बाद ST सेगमेंट आया, लेकिन यहाँ पे बेस लाइन के काफ़ी ऊपर उठ गया है. V1, V2. ओके, सो दीज आर दी सेप्टल लीड्स, एंड V1, V2, V3 ऑल्सो इन V4. तो V4 तक हमको ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है. इसका मतलब कि एंटीरोसेप्टल MI है. यदि ये V5, V6 को भी इन्वॉल्व करता तो ये लेटरल MI होता. तो दिस इज हार्ट रेट एज आई टोल्ड यू अराउंड 89 है. This is sinus rhythm and suspected anteroseptal myocardial infarction, because the V1 to V4 is this thing, ST elevation. So the main theme of this video is to make you understand how to look for ST elevation. ये baseline से ऊपर उठ जाता है, and इस तरीके का morphology you need to remember by heart. कि कोई आपको नींद में भी एक ECG दिखाए तो आप पहचान जाएं कि ST elevation है, because to identify this is very important, very very important, because you can save a life if you immediately recognize it and proceed further with the required treatment and the approach. Now I will tell you what we do. We do the TROP-T test. This is in our hospital only TROP-T test is available. This is the cardiac enzyme. Whenever there is injury to myocardium, ischemia or hypoxia, less blood supply, in myocardial infarction there is blockage in main vessels or the accessory vessels of the heart, and there is less supply of oxygen and blood. So there is necrosis or injury to myocardium, and this release particular enzymes like LDH, myoglobin, CPK, MB, CPK,
TROP T एंड ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I. सो वी हैव TROP T. यदि इसमें 2 लाइंस पॉजिटिव आती हैं तो ये पॉजिटिव होता है, एक लाइन आती है तो ये नेगेटिव होता है. तो TROP T नेगेटिव है, जरूरी नहीं है कि हर केस में पॉजिटिव हो या बाद में भी पॉजिटिव आ सकता है. एंड नाउ वी बाय लुकिंग एट द ECG V1 to V4 ST elevation, this is anterolateral MI, and we will give the loading dose of ecospirin and clopidogrel, which is antiplatelet, 75 mg both tablets, 4 tablets per orally, and anti-hyperlipidemic drug atorvastatin, 20 mg 4 tablets, along with the to manage the BP. BP is on higher side, so we are giving amlodipine oxygen support, and we are giving some painkiller to make relax the patient. So अब मैं आपको ये वीडियो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. इसके पहले ये बता दूं कि वी आर रेफरिंग द पेशेंट टू द हायर सेंटर बिकॉज एट आवर सेंटर वी डोंट हैव द कार्डियक फैसिलिटी ओवरऑल. सो आई विल एडवाइज फॉर अगेन रिपीट ECG, कार्डियक मार्कर्स CPK, CPKMB, TROP T, TROP I and LDH myoglobin. Then 2D echo and coronary angiography. CAG is coronary angiography, in which we see the blockage in the vessels of the heart, like in left anterior descending artery, circumflex, right marginal, and all those arteries. So we will see the blockage by coronary angiography, and in blockage you can see like this is the left anterior descending, and here is the blockage. Then you insert a coil here which dilates the vessel and dislodge the and may disrupt the thrombus. And also this is called stenting. Whenever we insert a coil for removing this and dilating the vessel, dilating the stenosis, so then it is stenting. So basic investigation is ECG, cardiac enzymes, 2D echo, coronary angiography and stenting in detailed cardiology evaluation and management. मैं आपको वीडियो शॉर्ट में हिंदी में समझा देता हूँ, तो आखिरी तक देखते रहिए. अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए आने वाले और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए. तो एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ था, मैं आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, या एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट होता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक का ECG कैसा होता है वो आपको समझा रहा हूँ मैं. ये पेशेंट सिंस मॉर्निंग चेस्ट पेन के साथ में, इसको छाती में दर्द था, ये प्रेजेंट किया. इसका BP 160/100 था, कोई रेडिएशन की हिस्ट्री नहीं है, पेन कहीं और रेडिएट नहीं हुआ, लोकेलाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट था, और इस पेशेंट को कोई डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है, बट इस एट द प्रेजेंटेशन इसका BP बढ़ा हुआ है. तो हो सकता है इस पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन या BP की प्रॉब्लम रही हो, जो कि इसने नोटिस नहीं की हो. अब जब हमने इस पेशेंट का इमीडिएटली ECG किया तो ECG में हमें देखने को मिला कि इसमें V1 to V4 लीड्स में ST एलिवेशन है. ST एलिवेशन कैसे देखना है, ये बेस लाइन होती है. जब भी यहाँ से ये ST एलिवेशन बेस लाइन के काफ़ी ऊपर से उठ जाता है तो ये ST एलिवेशन होता है. यहाँ पे भी सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना आपको, आप इस तरीके से देख सकते हैं. यहाँ पे भी आप देखिए ये बेस लाइन से काफ़ी ऊपर उठा हुआ है ST एलिवेशन. तो लीड V1 में ST एलिवेशन आप देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ST एलिवेशन नहीं है, यहाँ भी कोई सिग्निफिकेंट ST एलिवेशन नहीं देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे PQRST नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल से कंपेयर कर सकते हैं. एज यू कैन सी दिस इज द P वेव, दिस इज द QRS एंड दिस इज द ST. यदि ये यहाँ से उठ जाता बीच में से, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ST एलिवेशन होता. यहाँ पे भी आप देखिए P, QRS और T, यहाँ पे भी ST एलिवेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको ST एलिवेशन दिख रहा है. PQRS के बाद ये ST सेगमेंट पूरा एलिवेट हो गया लीड V1 में, V2 में, V3 में, और ऑल्सो इन द लीड V4. सो जब भी लीड V1 V2 में होता है तो ये सेप्टल MI होता है, V1 to V4 होता है तो एंटीरोसेप्टल MI होता है, और V1 to V6 होता है तो एंटीरोलेटरल MI होता है. तो एज यू कैन सी दिस इज एंटीरोसेप्टल MI V1 to V4, और ये साइनस रिदम का है ECG. और हार्ट रेट काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी दो R वेव के बीच में लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस को गिन लेते हैं, 1 2 3 से ज़्यादा है, और इसको 300 से डिवाइड करते हैं. तो 300 डिवाइडेड बाय 1 2 3 एंड 3.5, तो ये अराउंड 80-90 के आसपास हार्ट रेट आती है, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है. 89 हार्ट रेट है. तो मेनली मेरे को आपको यही समझाना था कि ये ST एलिवेशन है V1 में, V2 में, V3 में. इसको अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते. और ये हार्ट अटैक का ECG है, या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसको बोलते हैं, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं. तो इसमें V1, V2, V3 और V4, जब इन 4 लीड्स में ST एलिवेशन मिलता है तो ये हो जाता है एंटीरोलेटरल MI. ये देखिए यहाँ पे ST एलिवेशन हुआ, कोविंग प्लस ST एलिवेशन. यहाँ पे भी ST एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना उठा हुआ है. यहाँ पे भी QRS नीचे जाने के पहले ही बीच में से उठ गया ST सेगमेंट. और ये V4 में भी, V5 में बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, और V6 में नहीं है.
अब जब जैसे ये होता है तो हम इस पेशेंट आए चेस्ट पेन के साथ, आपने ECG किया, आपको ST एलिवेशन दिखा, आपने ट्रॉप टी लगाया या जो भी कार्डियक एंजाइम आपके हॉस्पिटल में होते हैं। कार्डियक एंजाइम में क्या क्या होते हैं? CPK-MB, CPK, ट्रॉप टी, ट्रोपाइट और LDH। तो जब क्या होता है, हार्ट की मसल्स को ब्लॉकेज के कारण से ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई प्रॉपर से नहीं होती, तो हार्ट की मसल्स का या मायोकार्डियम का नेक्रोसिस होने लगता है या इंजरी होने लगती है। उस नेक्रोसिस या इंजरी से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं हार्ट के स्पेसिफिक, जो कि हम टेस्ट करते हैं, जिसको कार्डियक एंजाइम या कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं। तो इसमें यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये 2 डंडी होती हैं, 2 रेड कलर के बार्स होते हैं, और नेगेटिव आता है तो 1। तो हालांकि यहाँ पे एक ही है बार, लेकिन हम इसको डायग्नोसिस को रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट को चेस्ट पेन भी और ST एलिवेशन भी। तो इसको फर्दर हमें 2D को करके देखना पड़ेगा, जिसमें कि वेंट्रिकल की वॉल का हाइपोकाइनेशिया मिल सकता है, वेंट्रिकल की वॉल कम मूव कर सकती है, वो सारी चीज़ें चेंजेस इको में देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हमने चेस्ट पेन देखा, ECG किया, ट्रॉप टी किया, ट्रॉप टी पॉजिटिव आया, नेगेटिव यदि ST एलिवेशन है तो आपको लोडिंग डोज देना पड़ता है। लोडिंग डोज ये होता है कि हम इमीडिएटली एंटीप्लेटलेट की 2 ड्रग इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल की 4 टैबलेट पर ओरली पेशेंट को देते हैं। साथ में एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो कि स्टेटिन होता है, एटोरवास्टेटिन 20 mg की 4 टैबलेट देते हैं। इसके साथ में BP हायर साइड में है तो उसके लिए एम्लोडिपिन हमने दे दिया, एंड कोई भी पेन किलर, पैरासीटामोल या ट्रामाडोल आप दे सकते हैं। तो आपको देखना है चेस्ट पेन के बाद ECG के बाद ट्रॉप टी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यदि ST एलिवेशन है पेशेंट के लीड्स में तो आपको लोडिंग डोज देना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विंटर्स में ज़्यादा करके ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, डेली 1-2 पेशेंट इस तरीके के आते हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हों। तो ये वीडियो था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, ECG में ST चेंजेस, ST एलिवेशन का। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID is DRANUJ5, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय।